because Dow is responsible for disabling children in Bhopal, and you should not especially buy into their toxic line of products. भोपाल में इतने बच्चे विकलांग पैदा है, वो वहाँ की जिम्मेदारी तो ले नहीं रहा है और हर जगह की जिम्मेदारी ले रहा है, मगर हमने उनको जाकर बताया कि वो पेड़ तो लगा रहे हैं मगर वो उनके लिए सही नहीं है, एक तरह से वो मदद कर रहा है मगर वो उनके लिए खतरनाक है. Dow is for, there are lots of disabled children in Bhopal and Dow doesn't do anything for them. So we basically wanted to tell them that this food that they are providing is not really going to help these children. मेरा नाम सरिता है और मैं भोपाल से आई हूँ. मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और 16 साल की हूँ. My name is Sarita. I have come from Bhopal. I study in 9th grade. I am 16 years old. That they've got. मैं भी उन्हीं 16 बस्तियों में से एक बस्ती है, प्रेमनगर कॉलोनी, जहाँ पर रहती हूँ. हम आज से 8-10 साल पहले वहाँ पर आए थे. जब हमारा परिवार वहाँ आया तो हमें नहीं पता था कि वहाँ का पानी जहरीला, न हमें बताया गया था कि वहाँ का पानी जहरीला. I live in one of those 16 communities where the water is contaminated. We moved there. I moved in there with my family about 8 to 10 years ago. When we first moved in there, we had no idea that the water in our community was contaminated. Neither the government nor any other body told us that the water was contaminated. जब हम वहाँ आकर रहने लगे तो लोगों में अलग अलग तरह की समस्याएं देखी. लोगों की सांस फूलती है, आज भी उनमें गुर्दे की तकलीफ है, महिलाओं में माहवारी की समस्या, आंखों में जलन, पेट में तकलीफ, और अभी जो बच्चे वहाँ पर पैदा हो रहे हैं उनमें अलग अलग तरह की विकलांगता आ रही है. उनकी उंगलियाँ जुड़ी हुई है, होंठ कटा हुआ है, तालू नहीं है, सर्वपालसी के बच्चे हैं, आँख बाहर निकली हुई है, हाथ पैर मुड़े हुए हैं, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते. When we started living there, I started to discover so many children, so many people with sickness, people who had breathlessness, people problem with their kidney, women who had problem with their menstrual cycles, people who had problem with stomach problems, and so many children who have all sorts of birth defects such as fused fingers, cleft lip, missing palate, deformed eyes, deformed hands, deformed legs, children who cannot walk on their own, children who cannot eat on their own, children who cannot talk on their own. लोगों में शुगर पाई जा रही है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां लोगों को हो रही है, और माँ के दूध में पारा पाया जा रहा है, टीबी कैंसर आम बीमारी की तरह फैल रहे हैं. जब ये सब कुछ मैंने देखा तो हमें सोचने में आता था कि ये सब कुछ यहीं क्यों है, इतना सब कुछ. जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ ऐसा सब कुछ नहीं था, पर हम यहाँ जब से आए तो यहाँ जितने भी लोग हैं सब में अलग अलग तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं. There is high rate of diabetes among people. There is mercury that is found in mother's breast milk, and high rates of tuberculosis and cancer. And when I started seeing this, I started to wonder, why is there that we see so many sick people in these communities where we have moved? Because where we lived before, there was not so much sickness and disability there. मेरी मम्मी जो भोपाल में 3 संगठन काम करते हैं, उनकी मीटिंग होती है हर बुधवार के दिन, तो वहाँ जाती थी. उनके साथ मैं गई वहाँ पर, तो वहाँ जाके मुझे इन सब के बारे में पता लगा. पहले मैं कुछ नहीं जानती थी. वहाँ जाके मुझे पता लगा कि इसमें गैस प्लांट और जो कंपनी ने अपना जहरीला कचरा दबाया था, जिसकी वजह से पानी जहरीला हुआ, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है. My mother used to attend meetings held by 3 groups that still mobilize people on the issue of Bhopal gas disaster, and she used to go to these meetings every Wednesday, and I started attending these meetings with her, and that is where I found out that the reason for all this sickness and the reason for all this disability is that people were either exposed to the gas disaster or people who live in these communities where the water is contaminated, and all the contamination is causing impacts on our health. और उसके बाद में मुझे ये भी पता लगा कि यूनियन कार्बाइड को 2001 में डाव केमिकल ने खरीद लिया, जो कि इतनी बड़ी केमिकल कंपनी है. और जब उसके बारे में मैंने पूछा और जब जानकारी हुई तो पता लगा कि डाव केमिकल हमारे साथ दोहरा व्यवहार अपना रही है, क्योंकि यहाँ की यूनाइटेड सरकार ने डस्टबिन कीटनाशक दवा है जिसे बैन कर दिया, क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल घरों में किया जाता है तो उसका असर बच्चों के दिमाग पर होता है, इसलिए यहाँ की सरकार ने उसे बैन करा. लेकिन डाव केमिकल ने उसे भारत लेके गया और उसका पंजीयन रिश्वत दे के करवाया और उसे खुलेआम बेच रहा है. भारत में उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई लागू नहीं है. Then I found out that Union Carbide was taken over by another very big chemical company called the Dow Chemical Company in 2001. And Dow Chemical has always followed double standards with us.
In 2001, Dow used to make a pesticide here called Dursban, which was banned in 2001 for home use. The reason it was banned for home use because it was causing damage to children in the nervous system. The very same year that it got banned here, Dow Chemical took this pesticide to India and started selling it and manufacturing it without any restriction. Then we later found out that Dow had paid a bribe to people in India, to officials in India, to get this pesticide registered. और वियतनाम में जो युद्ध हुआ था उसमें भी नेपाम और एजेंट ऑरेंज जो केमिकल बनाए गए थे उसमें भी डाउ केमिकल ही था और वो भी डाउ केमिकल द्वारा बनाए गए थे। ये सब मुझे जब पता लगा तो मुझे लगा कि मुझे भी इसमें जुड़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी खुद की जिंदगियों का सवाल है। इसकी वजह से मेरे पापा की भी आंखों में जलन रहती, मम्मी की भी सांस फूलती है, मैं अपना स्कूल बैग नहीं ले जा पाती हूँ, मेरी सांस फूलती है, हाथों की खाल निकलने लगी जब से मैं वहाँ आई, वो पानी आता है हमेशा ठंडे रहते हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखती हूँ तो आंखों से आंसू आते हैं। In Vietnam also Dow also made these two very toxic gases, Agent Orange and napalm. When I found all this out, this is when I decided that this fight is about our future. And because my parents also suffer from problems after we have moved into this area. My father has problems with his eyes and my mother suffers from breathlessness. I have this weird problem with my hands where I've started to lose skin every so often after I moved there, and my hands always stay cold and I sweat profusely in them. And if I concentrate too much on the blackboard, my eyes start to tear. ऐसी समस्या मेरे दोस्तों में भी है और मैं इसीलिए इसमें जुड़ी क्योंकि मुझसे छोटे मेरे भी 2 भाई हैं और आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य का सवाल है क्योंकि जिनको गैस लगी उनका भविष्य तो खराब हो ही चुका है, पर हम नहीं चाहते कि जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी भविष्य खराब हो और ऐसा भोपाल कहीं और भी हो। Same problems exist in my friends also, and we do not want any more future generations to bear this as people in Bhopal have. People who have been exposed to gas have been suffering and probably will suffer for the rest of their life. But we do not want any more future generations to pay how we have paid so far. जब से बच्चों का संगठन बना है तब से हम अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले से तो हम सबके साथ जुड़कर ही करते थे, पर जब से बच्चों का संगठन बना है तो वो खुद निर्णय लेते हैं और अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। अभी जब वोट हो रहे थे भोपाल में तब भी बच्चों ने बाबूलाल गौर के खिलाफ मतलब एक रैली निकाली और लोगों से अपील की कि बाबूलाल गौर को वोट नहीं दें, क्योंकि जब कंपनी वहाँ आई थी तो 1981 में कंपनी को ये पता लग गया था कि वहाँ का पानी जहरीला है। सिर्फ बाबूलाल गौर एक ऐसा इंसान है जिसने लोगों को कम पैसे में कंपनी के साथ समझौता करवा दिया और उस बात को वहीं दबा दिया, जिसकी वजह से आज 16 बस्तियों का पानी जहरीला है और वो आज हमारे यहाँ के गैस राहत मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। इसीलिए हमने बच्चों ने डिसाइड किया कि ऐसे इंसान को गैस राहत मंत्री नहीं बनाने दिया जाना चाहिए जिसने पहले ही हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया और अब वो गैस राहत मंत्री बनने के लिए हैं। तो हमने रैली निकाली, उसमें सबसे घर घर जाकर लोगों से अपील की कि प्लीज बाबूलाल गौर को वोट मत दें। And our children's organization have done several actions. We started a campaign where we asked that this man called Babulal Gaur, who is the gas relief minister, should not be re-elected, because this is the same man who negotiated an out-of-court settlement with Union Carbide in 1981. There were farmers who had lost their cattle because they drank the contaminated water, and he negotiated an out-of-court settlement with Union Carbide and these farmers, and later he became the gas relief minister. So we basically went from house to house and asked people that he has already poisoned our lives and he should not be made the gas relief minister anymore. और ये 25वां साल चल रहा है भोपाल गैस कांड को, पर अभी तक भोपाल में इंसाफ नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे कांग्रेसमैनों से भी मिले, सेनेटर से भी मिले। उनसे हमने 2 मांग रखी थी कि डाव केमिकल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डाव का है उसे एक साइलोन लेटर लिखें और एक जन सुनवाई रखें जिसके अंदर डाव के भी लोग हों और भोपाल के भी लोग हों, ताकि उससे पूछा जा सके कि वो भोपाल की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। जब उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। और अभी तक कंपनी ने ये नहीं बताया है कि उस रात जो गैस निकली थी उसमें कितनी गैसें निकली थी। MIC गैस का पता है और कुछ गैसों का पता है, लेकिन उस रात बहुत सी गैसें निकली थी उसके साथ उनका हमें पता नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो पाता है और जो डॉक्टर की समझ में आता है वही दवाइयाँ देते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि डाउस का इलाज भी बताए, भोपाल की जिम्मेदारी भी।
It has been 25 years and still there is no justice. And we have come here to talk to several people. We have met several people from Congress.